Hello friends, you are welcome back to my channel No English. Today I am back with one more video regarding present state of being, and today we have to learn interrogative sentences with question words and yes no questions. But before the starting the video, I would like to tell you one more thing that you haven't subscribed my channel. If you haven't subscribed my channel as of now, then please subscribe it and also press the bell icon so as to get notification of my upcoming videos. So let's get started without wasting any more time. First of all, I am going to give you the structure regarding interrogative sentences. So here is the structure with yes no questions. Is oblique am oblique are oblique subject plus other words. So this is the structure, and now I am going to give you an example. क्या वह उदास है? So this is the Hindi sentence, and this sentence will be translated in English with the help of this structure. So I'm just telling you how to translate this sentence into English. You don't have to do anything. You only have to follow the structure that I have provided to you. तो क्या वह उदास है? क्या उदास है? I'm gonna tell you in Hindi because you won't be able to understand English if you don't have any basic knowledge regarding English. So that's why I'm gonna teach you in Hindi. So it will be better for you. क्या वह उदास है? Is am are ये पहले नहीं बोल रहा है. Is am are ये पहले नहीं बोल रहा है क्योंकि ये उल्टा हो रहा है. क्या उदास है? अगर ये बोलता है वह उदास है तो सिंपल हो गया. वह उदास है, he is sad. वह खुश है, he is happy. वो नाराज है, he is angry. वो मेरा दोस्त है, he is my friend. वो मेरा दुश्मन है, he is my enemy. लेकिन ये उल्टा पूछा जा रहा है, उसी का कंडीशन पूछा जा रहा है, उसी का स्टेट पूछा जा रहा है, उसी का स्टेटस पूछा जा रहा है, उसी का पोजीशन पूछा जा रहा है कि क्या वो उदास है. मतलब यस नो में जवाब देना. यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय सेइंग यस और नो. सो दिस इज द ऑप्शन. क्या वो उदास है? ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी आदमी से, क्या वो उदास है, उसके बारे में पूछ रहा है, उसका राय लेने जा रहा है कि वो आदमी उदास है या कुछ और है या क्या है. उसका कंडीशन बताना है इसको. वो अभी किस स्टेट में है, वो अभी किस दशा में है, वो अभी किस हालत में है, वो किस पोजीशन में है, वो किस कंडीशन में है. क्या वो उदास है? तो इज लगेंगे पहले क्योंकि ही के साथ इजी लगता है. तो जब मेरे पास तीन ऑप्शन है इज एम आर, तो यहाँ ही मेरा क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा. और जो पहले लेने बोल रहा है कि उल्टा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव उल्टा ही बनता है. इज ही, इज ही. तो यहाँ इज मेरा आ गया, यहाँ सब्जेक्ट मेरा ही आ गया. अब क्या बच गया? अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स मेरा क्या है? सैड है, उदास है. क्वेश्चन मार्क. तो इज ही सैड, क्या वह उदास है. तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट all the sentences into English by flowing, by obeying this structure which you can see on the board. So you have to follow this structure and you can translate all the Hindi sentences. You can translate lakhs of sentences. You can translate 1,000 of sentences by following this structure. You can translate a lot of sentences. You only have to follow this structure. You have to follow my structure. Without following any English structure, you can't learn English. If you want to learn English, then you have to follow all the useful structure of English, whether it is basic
or it is advanced. तो easy said क्या उदास है. I'm gonna take one more example for you to make the concept clear for you. क्या तुम अमीर हो? क्या तुम अमीर हो? मुझसे कोई पूछा गया, मुझसे कोई पूछा है क्या तुम अमीर हो, मतलब मेरा स्टेट पूछ रहा है, मेरा हालत पूछ रहा है कि हम किस हालत में हैं, अमीर में है या गरीब में है या फकीर में है या भिखारी में है या चोर है या डाकू या लुटेरा है या गुंडा है. मेरा राय पूछ रहा है, इंजीनियर है या डॉक्टर या साइंटिस्ट है, मेरा राय पूछ रहा है हम किस दशा में, किस हालत में, किस पोजीशन में, किस कंडीशन में, किस स्टेट में है, ये पूछा जाता है. क्या तुम अमीर हो? तुम आ गया तो तुम के साथ क्या लेना पड़ रहा है, इज एम आर, देन यू हैव टू यूज आर because you can see here tum, it means you, and you can use are with the subject you, so I'm gonna use it. Just have a look. क्या तुम अमीर हो? are, तुम मतलब you, अमीर rich, so the complete sentence will be like that. Are you rich? क्या तुम अमीर हो? मुझसे पूछा गया है क्या तुम अमीर हो. अगर हम जवाब देना चाहेंगे तो इसको हम दे सकते हैं यस आई एम रिच, यानी यस में जवाब दिए, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका जवाब हमेशा आपको यस और नो में देना है. इस सारे क्वेश्चन का जवाब हमेशा आपको यस या नो में जवाब देना है. अगर आप नहीं है नो में दीजिए, नो नो आई एम नॉट रिच, नो आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं. ये हम डिनाई कर दिए, इनकार कर दिए, रिफ्यूज कर दिए कि मैं अमीर नहीं हूं. हमसे पूछा क्या तुम अमीर हो, आई सेड नो नो आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं. अगर मैं हूं, इफ आई एम रिच देन आई विल से यस आई एम रिच, बट इफ आई एम नॉट रिच देन आई विल से नो नो आई एम नॉट रिच, आई मीन आई एम पुअर, नो आई एम नॉट रिच. इसी का जवाब अगर देना है क्या वह उदास है, क्या वह उदास है. अगर वो उदास है, अगर वो उदास है, इफ ही इज सैड देन आई मस्ट से दैट ही इज सैड. यस ही इज सैड. सो आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. जस्ट हैव अ लुक. यस ही इज सैड, यस ही इज सैड. आई आंसर्ड हिम, मैंने उसे जवाब दे दिया. मुझसे पूछा ही आस्क्ड मी एंड आई आंसर्ड हिम बाय राइटिंग दिस सेंटेंस यस ही इज सैड. हाँ वो उदास है. अगर नहीं है, वो डिनाई करना है, रिफ्यूज करना है, कॉन्ट्राडिक्शन करना है, तो आई कैन से, आई विल डेफिनेटली से दैट नो ही इज नॉट सैड, आई मीन ही इज हैप्पी, मतलब वो खुश है. ही इज नॉट सैड, ही इज नॉट सैड मतलब ही इज हैप्पी. वो उदास नहीं मतलब वो खुश है, ही इज हैप्पी डेफिनेटली. तो ये आपका रहा यस नो. अब इसी का फिर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्या आएगा डब्ल्यू एच में आएगा. डब्ल्यू एच मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है. So you have taken screenshot of the board. Now I'm gonna erase it. Now you are going to learn interrogating sentence with question words. Just take a look. QW plus is oblique M oblique R plus subject plus other words.
So here is the structure. You have to use this structure to translate sentences. So here is the example. तुम क्यों नाराज हो? तुम क्यों नाराज हो? तुम क्यों नाराज हो में क्यों मेरा क्वेश्चन वर्ड है। क्यों जो है मेरा क्वेश्चन वर्ड है, क्यू डब्ल्यू है, मतलब हमको क्यू डब्ल्यू से शुरू करना है। हमें सेंटेंस को शुरू करना है क्यू डब्ल्यू से, और क्यू मेरा क्यू डब्ल्यू है। सो लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो क्यू डब्ल्यू मांग रहा है तो हमें क्यू डब्ल्यू देना है। क्यू डब्ल्यू मतलब वाई, क्यू को वाई बोलते हैं। अब उसके बाद क्या लेने बोल रहा है, इज लो, एम लो, आर लो। तो सबसे मेरा क्या है, तुम। तो जब तुम है तो ऑब्वियसली मुझे आर लेना है, आर लगे हैं। आर हो गया। आर के बाद क्या है, सब्जेक्ट, मतलब तुम, मतलब यू। वाई आर यू। आप क्या बोल रहे हैं, अदर वर्ड्स नाराज को बोलते हैं एंग्री। हो गया। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों नाराज हो, आप क्यों नाराज हैं। सो लुक एट वन मोर एग्जांपल। वह कैसे पागल है। वह कैसे पागल है। तो वह कैसे पागल है, कैसे मेरा है क्वेश्चन वर्ड। वह कैसे पागल है, इस वाक्य में कैसे मेरा क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्यू डब्ल्यू है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड। वह कैसे पागल है, तो कैसे से शुरू करना है, क्योंकि कैसे मेरा क्यू डब्ल्यू है और स्ट्रक्चर मेरा क्यू डब्ल्यू मांग रहा है, तो क्यू डब्ल्यू देते हैं। कैसे को हाउ बोलते हैं, हाउ। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह को ही बोलते हैं, और ही के साथ इज आता है। तो इज मेरा कहाँ है, इज यहाँ है, इज लगा देते हैं। हाउ इज हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सीधे यहाँ आ जाओ, सब्जेक्ट में कौन है, वह, ये लगा देते हैं। हाउ इज ही, अब क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अन्य शब्द क्या है, पागल। एंड पागल को बोलते हैं मैड, या फिर इंसान बोल सकते हैं, या फिर क्रेजी बोल सकते हैं आप। तो हाउ इज ही मैड और इंसान, वह कैसे पागल है। हाउ इज ही मैड और इंसान, आप चाहे इंसान बोले, आप चाहे मैड बोले, आप चाहे क्रेजी बोले, यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स, मैड, इंसान, फॉर द हिंदी वर्ड पागल। लुक एट वन एग्जांपल। हम लोग क्यों हम लोग क्यों डॉक्टर हैं। हम लोग क्यों डॉक्टर हैं। अब क्यों क्या होता है, क्यों रीजन मांगता है। क्यों जो होता है, वाई जो होता है, ऑलवेज आस्क रीजन, ये हमेशा रीजन पूछता है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या कॉज है। तो कॉज को मेंशन करना, यू हैव टू मेंशन द कॉज, यू हैव टू टेल द रीजन, यू हैव टू टेल द कॉज। व्हाई आर वी डॉक्टर्स, हम लोग क्यों डॉक्टर्स हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज। हम लोग क्यों डॉक्टर हैं, तो रीजन मांगा है, तो हमको पहले सिर्फ ट्रांसलेट करना है, अभी हमको रीजन नहीं बताना। अगर रीजन बता तो फिर मेरा आंसर मेरा हो गया। तो वी डोंट नीड टू आंसर एनी क्वेश्चंस, वी जस्ट हैव टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। दैट्स आवर मोटिव, दैट्स ऑल, एंड देयर इज नथिंग एल्स। You only have to translate all the Hindi sentences into English. After that, we will learn how to answer questions. So today, you only have to focus on how to translate sentences. So that's it. हम लोग क्यों डॉक्टर है, हम लोग है, और क्यों मेरा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों को लिखेंगे हम लोग वाई, वाई ले ली। अब वाई के बाद लेने बोल रहा है इज एम आर, तो हम लोग मेरा सब्जेक्ट है, हम लोग को वी बोलते हैं, और ऑब्वियसली जनरली कॉमनली वी के साथ हमेशा आर आता है, आर लेते हैं। अब क्या लेने वाला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम लोग है, तो लेकिन वी,
Why are we? अब बच गया क्या अदर वर्ड्स, मैं डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स DOCTORS। एक बात ख्याल करना है, यहाँ डॉक्टर नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को डॉक्टर्स करना पड़ेगा, डॉक्टर को डॉक्टर्स करना है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सिंगुलर हो गया, हमें प्लूरल बनाना है क्योंकि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें डॉक्टर्स लगाना पड़ेगा। So that's all for today. See you in another video. Till then, God bless you. Keep smiling and have fun. And one more thing, I want to tell you, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it. Otherwise, you will miss everything. You will miss what I teach.